Now, gymnosperm. The next point is the gymnosperm. So what is gymnosperm? पहली बात करते हैं gymnosperm. So the term gymnosperm was derived by Theophrastus. Derived by Theophrastus. The term gymnosperm derived by Theophrastus, derived by the Theophrastus, and the Theophrastus known as the father of gymnospermology, and the study of gymnosperm known as gymnospermology. Means that word, the gymnosperm word was derived by Theophrastus, and the study of gymnosperm is known as the gymnospermology. Okay, and the father of gymnospermology is Theophrastus, and the father of gymnospermology is Theophrastus. The father is Theophrastus. Clear बेटा? Now we all know that gymnosperm. आ गए बेटा महर्षि जैनम सब लोग. ओके, हेता है बेटा ऑनलाइन? हेता आप ऑनलाइन हो बेटा? Okay, so now the Theophrastus is the father of gymnospermology. Now the characteristics of gymnospermology. Now the characteristics. So in the characteristics, gymnosperm, gymnos मतलब open, naked, and the sperm मतलब seed. So the gymnosperm means first gymnos मतलब naked or it is open, and sperm मतलब seed. So gymnosperm मतलब naked seed means they do not possess the wall of the ovary. We all know that. For an example, suppose this is the gynoecium. Okay, the structure is known as the gynoecium. Okay, suppose this is whole is the flower. This is the structure of flower, right? And here it is the androecium. But if this ovary is absent, and here directly it possesses the ovules directly यहाँ पर होगा. This is the direct ovules, no ovary wall. So this is the ovule. So ovule is naked, ovule is open, they are not covered by the ovary wall. So in this, the ovule is not covered by wall of ovary, both before
फर्टिलाइजेशन। एक्चुअली ओव्यूल जो होता है बेटा वो कवर्ड होता है ओवरी से, बट इन जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल इज ओपन, दे आर नॉट कवर्ड बाय द ओवरी, दे आर नॉट कवर्ड बाय द ओवरी, सो it is known as naked ovules, naked ovule, so it is called जिम्नोस्पर्म। ओव्यूल्स नेकेड होंगे बेटा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। इन दिस प्लांट दे possess the embryo, means after fertilization embryo development भी होगा, seed formation भी होगा, but the fruit is not formed. Okay, in this plant embryo and seed development takes place, but no fruit formation. Actually the fruit is formed from the ovary. fruit कहां से formed होता है बेटा, the fruit is always formed from ovary, so ovary is developed into fruit, but यहां पर ovary ही नहीं है तो fruit होगा नहीं। the smallest gymnosperm is Gemia pygemia, the Gemia pygemia is the smallest gymnosperm, and the redwood it is Sequoia sempervirens, it's a tallest gymnosperm around 150 मीटर हाइट। कितना होगा बेटा उसका हाइट, 150 मीटर। मीन्स अगर हम सिंपल जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस मीन्स नेकेड ओपन सीड, दे डू नॉट possess the wall of the ovary, that's why they possess the embryo and the seed formation takes place, means seed भी होगा एम्ब्रियो भी होगा, बट दे डू नॉट दी फ्रूट, फ्रूट उसमें होगा नहीं। सबसे छोटा जो जिम्नोस्पर्म है दैट इज जेमिया पाइकीमिया, एंड द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म और द लॉन्गेस्ट टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म इज सिकोया सिम्परविरेंस। नाउ अब उसके कैरेक्टर की बात करें, सो द जिम्नोस्पर्म possess the xylem and the phloem. Gymnosperm has vascular tissue, उसमें भी vascular tissue होगा, but in xylem vessel and in phloem companion cell is absent। तो बेटा यहां एक आपको ये चीज याद रखनी है कि जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, में जाइलम एंड फ्लोएम है, जैसे हमने टेरिडोफाइट में देखा था बेटा, जाइलम एंड फ्लोएम इज प्रेजेंट बट दे डू नॉट possess द जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकेट, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेंकाइमा, 4 पार्ट होते हैं जाइलम में से, उसमें से वेसल्स नहीं होगा। वैसे ही फ्लोएम में, फ्लोएम कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब्स, फ्लोएम पेरेंकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर 4 होते हैं, उसमें से कंपेनियन सेल एब्सेंट होंगे। नाउ द रूट, एक्चुअली द रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म आर दे टैप रूट। अब आपको वो भी क्वेश्चन होगा कि सर टैप रूट क्या है,
टैपरूट मतलब इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रूट. टैपरूट मतलब इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट रूट विच इज प्रेजेंट इन द डीप ऑफ द सॉइल. टैपरूट मतलब strongest root and it is deep in the soil. And this taproot in some gymnosperm, okay, like pinus root associated with fungi. Which fungi? So glomus fungi, and it is known as mycorrhiza. Means रूट उसके टैप रूट है, और कई बार लाइक पाइनस प्लांट में रूट के साथ फंजाई एसोसिएटेड होते हैं. पाइनस प्लांट में रूट के साथ बेटा क्या फंजाई एसोसिएटेड होते हैं, एंड दैट फंजाई इज द ग्लोमस फंजाई. विच फंजाई? ग्लोमस फंजाई. एंड दिस एसोसिएशन इज नोन एज द माइकोराइजा. एंड इन साइकस root has special cell known as corolloid root. And they are responsible for fixation of nitrogen. It helping fixation of nitrogen, and this is called the corolloid root. मैं जितने भी बेटा अंडरलाइन कर रहा हूं, बॉक्स बना रहा हूं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू. ओके, जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं या फिर बॉक्स बना रहा हूं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू. सो दे पॉसेस द टैप रूट, बट टैप रूट पाइनस प्लांट के टैप रूट के साथ क्या होंगे? ग्लोमस फंजाई होंगे, और वो क्या करेंगे? माइकोराइजा बनाएंगे और म्यूचुअल एक दूसरे को हेल्प करेंगे. वैसे ही साइकस जो प्लांट है उसके रूट में स्पेशलाइज सेल होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोरोलॉइड रूट. और ये कोरोलॉइड रूट का काम क्या बेटा? दे हेल्प द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल. नाउ अब ब्रांच की बात करें. सो इन ब्रांचिंग इन स्टेम पाइनस इज branched and साइकस में कैसा होगा? अनब्रांच्ड रूट. मीन स्टेम जो होंगे ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड का मतलब क्या है? सपोज दिस इज द स्टेम, राइट? सो अगर स्टेम में से कोई ब्रांचिंग निकलते हैं तो दैट इज नोन एज द ब्रांच्ड स्टेम. अगर नहीं निकलते हैं दैट इज नोन एज द अनब्रांच्ड स्टेम. सो साइकस में अनब्रांच्ड स्टेम होगा और पाइनस में ब्रांच्ड स्टेम होगा. नाउ लीफ की बात करें बेटा. सो इन लीफ दे आर सिंपल एंड कंपाउंड लीफ इज प्रेजेंट. नाउ व्हाट इज सिंपल एंड कंपाउंड लीफ? तो कई बार बेटा आपने देखा होगा, मैं यहां पर लीफ ड्रॉ कर रहा हूं और फिर आपको बता रहा हूं सिंपल क्या है, कंपाउंड क्या है. तो सपोज दिस इज द सिंपल लीफ. ये क्या है बेटा? ऐसे जो लीफ होते हैं दैट इज द सिंपल लीफ. इसको क्या बोलते हैं? सिंपल लीफ. बट द लीफ लाइक दिस सॉरी, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं. ऐसे लीफ होते हैं. दिस इज कॉल्ड
compound leaf. So this is the simple leaf, this is compound leaf, और इसको कंपाउंड लीफ और पाइनेट लीफ भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पाइनेट. क्यों पाइनेट? क्योंकि ये बेटा आपको कैसा लग रहा है? फैदर जैसा दिख रहा है. फैदर्स पीछा जो लागे फैदर जैसा दिख रहा है, इसलिए उसको पाइनेट लीफ भी बोलते हैं. सो लीफ मे बी सिंपल और मे बी कंपाउंड. जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे बेटा प्लांट का, तब मैं आपको लीफ का टाइप डिटेल में बताऊंगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट, दिस पिनेट लीफ, this for withstand at high temperature, withstand at the high temperature, wind and humidity. Means जो जिम्नोस्पर्म के बेटा लीफ होते हैं, दे आर एडेप्टेड फॉर दी हाई टेम्परेचर. बहुत टेम्परेचर हो फिर भी वो सर्वाइव करते हैं. अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी हो तो भी सर्वाइव करते हैं, और विंड अगर एयर ज्यादा हो, पवन ज्यादा हो, हवा ज्यादा हो तो भी वो सर्वाइव करते हैं. इन कॉनिफर, ये एक चीज बेटा याद रखनी है, इन कॉनिफर प्लांट दे लीफ आर needle shaped to reduced surface area. मीन्स कॉनिफर प्लांट में बेटा जो लीफ होंगे वो कैसे होंगे? नीडल शेप. मीन्स लाइक दिस. लीफ ऐसे होंगे, नीडल शेप. नीडल शेप लीफ होगी टू रिड्यूस द सरफेस एरिया, क्योंकि जितने पतले होंगे तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा. to reduce the surface area and has a sunken stomata and thick cuticle. स्टोमेटा जो होते हैं, हम सबको पता है बेटा स्टोमेटा का काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ओके, वाटर और जो गैसेस है उसको एक्सचेंज करता है. तो स्टोमेटा कैसे होंगे? संकन. संकन का मतलब क्या है बेटा? तो सिकड़े हुए छोटे छोटे स्टोमेटा होंगे. ये सारी चीजें आपको याद. लॉस मीन्स पानी का लॉस कम हो, इसके लिए वो नीडल शेप्ड लीफ बना देते हैं. नीडल शेप का मतलब एकदम छोटे लीफ हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा. स्टोमेटा होंगे वो बंद हो जाएंगे. एंड जो ऊपर क्यूटिकल होगा, क्यूटिकल मतलब ऊपर लेयर, वो एकदम ठीक हो जाएगा, जिसकी वजह से पानी का जो लॉस होगा वो कम हो जाएगा. क्लियर? हिमालयन रीजियन स्लो, इसको क्या बोलते हैं? फाइटिक. प्लांट जैसे पानी में हो तो उसको हाइड्रोफाइटिक बोलते हैं. पानी में हो तो उसको हाइड्रोफाइटिक बोलते हैं. समंदर में हो तो उसको हेलोफाइटिक बोलते हैं. वैसे ही अगर हिमालय एरिया में अगर कोई प्लांट है तो उसको बोलते हैं ज़ेरोफाइटिक. क्या बोलते हैं बेटा? ज़ेरोफाइटिक प्लांट. ओके, एक बार फिर से ये सारी चीजें मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा. यहां देखिए कि फर्स्ट टर्म वाज गिवन बाय द थियोफ्रेस्टस. स्टडी इज नोन एज द जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस नेकेड. जिम्नोस का मतलब नेकेड एंड स्पर्म का मतलब सीड. जो सीड नेकेड होते हैं मीन्स ओवरी इज एब्सेंट. कैरेक्टरिस्टिक्स जिम्नोस मतलब नेकेड, ओपन, एंड स्पर्म मतलब सीड. नाउ ओव्यूल इज नॉट कवर्ड. हियर द ओव्यूल इज नॉट कवर्ड, ओव्यूल इज ओपन. एंड हम सबको पता है ओव्यूल्स में से क्या बनता है बेटा? सीड. तो सीड कैसे होंगे? ओपन सीड होंगे. मीन्स ओव्यूल इज नॉट कवर्ड बाय वॉल ऑफ द ओवरी बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. दैट्स व्हाई ओव्यूल इज नेकेड इन जिम्नोस्पर्म. And possess embryo as well as seed, but it do not possess the fruit, because we all know that fruit is developed from the ovary. तो इसमें ओवरी नहीं है तो फ्रूट कहां से डेवलप होंगे? छोटे से छोटा प्लांट है जिमिया पाइगिमिया. बड़ा प्लांट है रेडवुड, दैट इज सिकोया सिम्परवेरेंस. जिम्नोस्पर्म हैज वास्कुलर टिश्यू बट नो वेसल्स एंड नो कंपेनियन सेल. टैप रूट है उसमें, मीन्स रूट आर डीप इन द सॉइल एंड स्ट्रॉन्ग रूट. बट जो पाइनस प्लांट है उसके रूट के साथ कौन एसोसिएटेड है? फंजाई. और उसको हम क्या बोलते हैं? माइकोराइजा.
और जो साइकस प्लांट है उसमें रूट के अंदर स्पेशलाइज सेल होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोलॉइड रूट. इट कैन हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन. देन इन स्टेम ऑफ द पाइनस इज ब्रांच्ड एंड द साइकस स्टेम इज अनब्रांच्ड. लीफ की बात करें तो दे हैव सिंपल एंड कंपाउंड लीफ. तो बेटा यहां पर मैंने लिखा सिंपल लीफ ऐसे होते हैं, कंपाउंड लीफ ऐसे होते हैं. और ये पाइनेट लीफ बोलते हैं. क्या बोलते हैं, पाइनेट. क्यों पाइनेट, क्योंकि ये पीछे जैसा है, फेदर जैसा है, इसलिए उसको पाइनेट लीफ बोलते हैं बेटा. नाउ दिस पिनेट लीफ इज परसिस्टेंट फॉर मेनी इयर्स एंड जिम्नोस्पर्म के जो लीफ होते हैं दे आर वेल अडेप्टेड फॉर विथस्टैंड एट हायर टेम्परेचर, हायर ह्यूमिडिटी एंड हाई विंड. मीन्स अगर ज्यादा पवन हो या फिर ह्यूमिडिटी हो और टेम्परेचर हो फिर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं. नाउ इन कॉनिफर, ये बेटा मैं फिर से करता हूं, इन कॉनिफर प्लांट मतलब जो भी हिमालय एरिया में होते हैं उसको हो गए और थिक क्यूटिकल आ गया तो वाटर लॉस कम हो जाएंगे. ऐसे जो भी जिम्नोस्पर्म है वो बहुत लिमिटेड एरिया में पाए जाते हैं, ज्यादातर इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, ज़ेरोफाइटिक. अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, सर ज़ेरोफाइटिक मतलब डेजर्ट प्लांट जहां पानी होता है. हिमालय में कहां पानी कम होता है, बट अगर बहुत भी कंडीशन ड्राई है, दो कंडीशन होती है, एक फिजियोलॉजिकल ड्राई एंड एक फिजिकल ड्राई. फिजिकल मतलब पानी है ही नहीं, फिजियोलॉजिकल मतलब बहुत पानी है. ओके तो यहां पर बहुत पानी होगा इसलिए वो ज़ेरोफाइटिक है.